Hello and welcome to our channel. In this video, we'll discuss an ancient Sanskrit saying which holds a powerful message for all of us. The saying is Vinashakale Viparita Buddhi. It refers to an intellectual person who tends to make foolish decisions at the time of ruin. Many people might think this saying was referred to characters like Ravana, Duryodhana, or even Dharmaraja while playing the game of dice. However, did you know that this saying was actually referred to Lord Rama? Yes, it was mentioned in Chanakya Niti in reference to the nonsensical chase of golden deer by Rama. Any right-thinking person would know that there is no such thing called golden deer. But still, Rama went out for a hunt of this strange creature which ultimately led to the kidnapping of Sita. This serves as a constant reminder for all of us to slow down and not take impulsive decisions that can ruin our lives. In conclusion, the saying Vinashakale Viparita Buddhi is a timeless reminder for us to stay mindful of our actions and do not let our minds betray us in the times of ruin. Thank you for watching this video. If you found it useful, please like, share and subscribe to our channel. Hi guys, this is Manu Mishra. So today we discuss about the Place of Worship Act 1991. रीजन भी क्योंकि अभी एक पर्सन ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो. रीजन भी क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और हमारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने तोड़कर वहां पर अपने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बना दिया. द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सेज कि उन्होंने एक लाइन डिमार्केट करके रखी हुई है 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया में जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. पहले 15 अगस्त के पहले जो हुआ कोई मतलब नहीं है उसका. But there are certain exceptions. There are two exceptions basically. The first exception is Babri Masjid and Ram Janmabhoomi disputed land. And the second exception is the religious monuments or the monuments which are listed under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958. Now, a key term in electoral politics of UP has become the Pasmanda Muslims. A Pasmand basically is a Persian word which means ones left behind and refers to backward Dalit and tribal Muslims जो कि caste discrimination witness करते हैं. Justice Ranganath Commission ने in fact बताया था कि despite equality के ideas in Islam, Muslim society in India is also divided into a number of biradaris जिसके अंदर Ashrafs are the noble elites, Ajlafs the backward Muslims and Arzals Dalit Muslims. Now importantly जो Constitution Order of 1950 है जो कि allow करता है SC status to a number of Dalits in the country, ये सिर्फ हिंदू सोसाइटी के लिए extend किया गया था पहले and later on Sikhs and Buddhists पे apply कर दिया गया. मतलब मुस्लिम्स के अंदर अभी भी SC स्टेटस जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता. However, मंडल कमीशन के थ्रू जो नॉन अशरफ क्लासेस थी ऑफ अजलफ्स एंड अर्जल्स इनके लिए OBC कैटेगरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है. मुसलमानों में दलित है, होते नहीं है, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे. मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हलालखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है. उसी तरह जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं. मेरा नाम मोहम्मद कलाम आजाद है जी. हम भी बख्श बिरादरी से हैं. इस्लाम धर्म मानने वाले जात होते हैं. पक्खों की काम कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है. स्टील की बर्तन होती है, ला करके इसको हम लोग बना करके फिर रोड पर जाकर हम लोग इसको बिक्री करते हैं. क्योंकि बाकी जो बिरादरी है, जो सैयद है, पठान है, शेख, ये लोग क्या बक्खों के जो काम को या बक्खों की बिरादरी को नीचे समझते हैं? एकदम नीचे समझते हैं. शेख सैयद जो लोग हैं बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं. साथ में छूत मानते हैं, भिन मानते हैं. ये तो घर घर का है, जिससे पूछेगा आप बता सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? तो जात पात है. हाँ, जात पात अभी है. जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं वहाँ पर कोई जात पात नहीं है. वहाँ पर इसलिए बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, मगर एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप. वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात
वहाँ ये सब भूल जाइए, वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं। मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और वो क्या बोलता है, शोषण आ जाता है आगे में। यानी कि जो इस्लाम का पैगाम था, मसावात का, बराबरी का, वो समाज में अभी तक यहाँ अपना नहीं पाए हैं। डॉक्टर इकबाल को लगा था, इनका सारे जहाँ से था हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है, उनका एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। काम सेम रहा, धर्म बदला और धर्म भी उन्होंने कुछ चाह में बदला था। वो चाह ये था कि चूंकि वहाँ अनसिविलिटी था, वह अस्पृश्यता था, जिसके वजह से वो चाहते थे कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ उठे बैठे, और वहाँ वो लोग उनको दरकिनार रखते थे। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, है नहीं, मुसलमानों के मनोवादी लोग जिन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम करके रखा, और लिखा हुआ है हमारे यहाँ अमर रजा खान साहब ने फतवा रिजविया में लिखा कि अगर ये जुलाहा और हाय, है नहीं, और क्या कहते हैं, कसाई और नाई और धोबी, ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये आलिम भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, तब भी ये सैयद के बराबर के नहीं हो सकते, शेख के बराबर के, ये सुरफा के कुफू नहीं, यही लाइन है। ऐसा है, कब्रिस्तान भी अलग है और दलित मुसलमानों का मस्जिद भी अलग है। आप लोहरदगा में एक 15 बस्ती है जहाँ की आबादी करीब 100 घर से ज्यादा पमरिया लोग बसते हैं। वहाँ पर ही लोग ने उसको मार धार के भगा दिया और कहा जुमा के नमाज में कि पमरिया लोग तुम पीछे जाओ, आगे नमाज पढ़ेगा। उस पर इन लोग ने कुछ मारा पीटी हुआ, अंत में ये हो गया कि लोग एनसीसी से जुड़ गए, मारा पीटी किए। तब अंत में ये लोग कहा कि कितना हम लोग लड़ेंगे, तो वो लोग ने पमरिया बिरादरी की मस्जिद अपने अलग बना लिए, है नहीं। वो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, तो उस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए वो मुसलमान हुए, है नहीं। और आज भी उनको मस्जिद में बराबरी में नमाज पढ़ने के लिए उनको सीपीआई एबल का सहारा लेना पड़ता है। ये जो फॉरवर्ड मुसलमान है, अपने दलित भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम सीपीआई ज्वाइन कर क्या हो तो नमाज पढ़ने देंगे, नहीं तो तुम मस्जिद से बाहर हो। मुसलमानों के लाख से छुआछूत है, ये है मुसलमानों में। हमारे गांव में खुद कब्रिस्तान अलग है, हमारे पमरिया कब्रिस्तान अलग है, मंसूरी कब्रिस्तान अलग है, सैयदों कब्रिस्तान अलग है, धुनिया कब्रिस्तान अलग है, और लोग कहते हैं अनटचेबल नहीं है। हिंदू जब मुसलमान को टारगेट करके हिंदू पोलराइजेशन करता है तो नेता तो उसका ब्राह्मण ही बनता है। तो मुसलमान जब पोलराइज होता है तो नेता तो सैयद ही बनता है, नहीं तो कोई तो शेख या पठान ही बनता है। जुलाहा को कहाँ कौन नेता मानता है। ये एक और चीज बताइए कि जो बीजेपी का जोर रहा बीच में और हिंदू भी अपने साथ रखे, तो ये कौन कौन लीडर हैं और उनकी क्या कास्ट है? तो टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग, ये लोग टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। बिहार में गए जो अनवारुल हक शेख बिरादरी के थे, सैयद शाहनवाज तो जन्मे के थे सैयद हैं। फिर आरिफ मोहम्मद खान गए, खान है। फिर नजमा अब्दुल्ला के वो सैयद हैं। दोनों तरफ से उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं। एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और सांप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग। तो ये तो मामला है। हमारा पसमानदा मुसलमान कभी ना कॉमनल था, न कॉमनल है, और न हमारे यहाँ की ऐसी ट्रेनिंग है। तो ये जात पात हमारे उलमाओं का दिन है, हमारी दिन नहीं। हम तो डॉक्टर नूर हसन आजाद, मुमताज आलम साहब है। बाद में पता चला कि हम तो पमड़िया हैं। वो असल में ये है कि मुसलमानों का जो 85% आबादी है वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ जो इंडिया में पोजीशन है, आज ही पसमानदा मुसलमान के टोटल समझिए पसमानदा मुसलमान है, और ये 20% या 15% ये फॉरवर्ड मुसलमान, ये टोपी की तरह से पसमानदा मुसलमान के सर पर बैठ गए हैं और काम इससे लेते हैं।
टोपी बन गए हैं और काम लेते हैं इससे। This Varna, as far as I can see in the present day, I think it is even today very relevant. Those who can carry the tradition of the Shastra